Hello everyone and welcome to the Simple Concept YouTube channel. So myself Anirudh and today I am going to teach you guys about percentage chapter. But before starting with it, let me introduce you with it. Unacademy UPSC Championship 2.0. So what is it? It is the All India Free Mock Test Series. So if you are going to appear for this prelims, which is going to happen on the 4th of October, you should definitely try it, because what the benefits you will be get here is that win a chance to meet the UPSC CSE 2019 toppers, top Unacademy educators, and Unacademy subscription scholarship also you can get in it. Okay, so less than 40 days left, as we all know that prelims is going to happen on the 4th of October. So complete the preparation for the UPSC CSE 2020-21 or 22 with the Unacademy. So for that what you have to do is that it is the one subscription unlimited benefits. So what are the benefits you will be get here is that learn live from the comfort of your home, unlimited access to the all courses, top educators of the India on the one platform, exhaustive coverage of the syllabus, so you don't have to worry about the syllabus if you are preparing for the first time. So this is the great opportunity because you don't have to worry about the syllabus, because all the syllabus will be covered and you need to only revise the chapters which will be covered in the lecture. Regular doubt clearing sessions. Okay, so it is on the regular basis. So live test series, then study material in the PDF format. So if you are attending the live lecture, so don't worry about the material, it will be provided you in the PDF format. Then answer writing sessions. Once you will be clear the prelims, then you will be have to appear for the मेंस एग्ज़ाम. एंड फॉर दैट उसके लिए जो आंसर राइटिंग सेशंस है वो बहुत ही यूज़फुल है, और वो भी वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स जिन्होंने मतलब यूपीएससी क्लियर की होगी उनसे ही आपको गाइडेंस मिलेगी. सो बहुत ही अच्छा चांस है. फिर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिल सकती है आपको इसमें. सो इट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन. क्यों है ऐसा? बिकॉज the structured batches with the top educators batches in the Hindi, English and bilingual also. Okay, so late night as well as the 2 years batches are also there. Suppose if you are planning to give the UPSC CSE prelims in the 2022, so at for that you can also try it. Okay, 100% syllabus coverage. You need to only revise it before your exam, so don't worry about the syllabus. Vast range of the optionals, prelims test series with the evaluation, mains test series with the evaluation, dedicated doubt clearing classes, daily current affairs practice, essay and answer writing practice, performance analysis, sectional quizzes and interview preparation. So UPSC CSE complete preparation batch course starting on the 31st of August 2020. There are as you can see on the screen, Mission UPSC CSE 2021 which is the bilingual GS batch course. देन एक लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 भी है. अगर कोई हिंदी मीडियम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है तो इसको भी चूज़ कर सकता है. सारी की सारी जो भी है मतलब अनअकैडमी के फ़ायदे वो सभी इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि फुल ईयर बैच कोर्स है ये सब, फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा आपको, टॉप एजुकेटर से सीखने को मिलेगा, प्रीलिम्स एंड द मेंस टेस्ट सीरीज विद द एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस तो होते ही है, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन भी करवाते हैं इसमें. और ये जो थर्ड है एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएसई 2021, अगर कोई सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है. देन मिशन यूपीएससी सीएसई 2022 बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स. ओके, सो अगर कोई 2022 में देना चाहता है एग्ज़ाम तो इसको वो चूज़ कर सकता है. सब्सक्राइब नाउ एंड गेट द 10% एक्स्ट्रा ऑफ. ओके, सो इफ़ जब अगर आप ये डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन अनअकैडमी की, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा. सपोज़ ये देखो आप 24 मंथ्स का एक सब्सक्रिप्शन लेने का ट्राई करते हो तो हमारा ये जो कोड है वो आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कोड सिंपल YT. इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि मतलब जो आपका 10% ऑफ मिलेगा आपको, जैसे कि ये 64,000 फीस थी, बट जब आप प्रोमो कोड अप्लाई करोगे तो ऐसा 10% अप्लाइड आ जाएगा, मतलब 6,400 आपका कम हो जाएगा. सो यह प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो आप. अगर आपको कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो. सो हाँ, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी CSE प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़
रोज़ रात शाम को 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको टेस्ट एनालिसिस के साथ भी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो डेफिनेटली ये तो सबको ट्राई करना चाहिए और ये तो बिल्कुल फ्री है। सो अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको ये देना चाहिए। फिर ये हमारी कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी चैनल है। आप ये सबको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहे। जैसे कि कोई नई बैच स्टार्ट होने वाली हो या कोई नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया हो, तो सारी अपडेट्स मिल सकती है। सो हरी अप एंड ज्वाइन इट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए तो, बिकॉज़ ये जो परसेंटेज है उसके ऊपर काफ़ी सारे चैप्टर्स मतलब डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस करना है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर आपको करना है, तो आपका ये जो परसेंटेज चैप्टर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर एक आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, तो अगर वो भी आपको करना है तो उसके लिए भी आपको ये परसेंटेज वाला चैप्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जो कैलकुलेशन आएगा वो परसेंटेज पे बेस होगा। सो बेसिकली ये परसेंटेज होता क्या है, तो पर सेंट होता है। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब इंग्लिश में होता है 100। ओके, सो मतलब अगर आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, उसको आप 100 से कंपैरिजन करके जो भी वैल्यू लाते हो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि सपोज़ हम ये रिज़ल्ट जो भी हमारा बनाते हैं, सपोज़ किसी बंदे को 500 मार्क्स की एग्ज़ाम थी, 500 मार्क्स की एग्ज़ाम थी, उसमें से उसको आए 400 मार्क्स। तो हम क्या करते हैं, इसको 100 में से कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्या हमें पता चल जाए कि उसके परसेंटेज कितने हैं। सो इससे क्या होगा, 100 × 400 डिवाइडेड बाय 500। ओके, और ये जो भी आ गया हमारा वो होगा हमारा परसेंटेज। सो इसी तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का मेनली यूज़ कब होता है, इसका मतलब जो मेन यूज़ होता है वो होता है कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज़। ओके, सपोज़ ये हमारा जीडीपी ग्रोथ ही देख लो आप, कि जैसे कि हर साल वो उसको हम कैसे काउंट करते हैं कि इस साल रहा था हमारा 7.2%, फिर उसके अगले साल रहा 6.1%। तो ऐसे मतलब जब भी बहुत ही ज़्यादा होता है, पता है जीडीपी तो ट्रिलियंस में और उसमें रहता है, बट हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करने के लिए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ईजी रहे कंपेयर करना। सो इसी तरह परसेंटेज जो है वो बहुत यूज़फुल है काफ़ी सारे कैलकुलेशन में, और उसका मेन यूज़ मतलब जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है वो कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज़ के लिए होता है। ठीक है, और ये मतलब ये जो बेसिक मेथड है हमारी, कि मतलब सपोज़ ये जो मार्क्स ढूंढने के लिए हम अप्लाई करते हैं उसको बेसिक परसेंटेज बोलते हैं। चलो अभी हम सीधा एग्जाम्पल पे ही चले जाते हैं ताकि हमारे जो भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए, और हम प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच ही अपनाएंगे ताकि जितने भी सारे एग्जाम्पल पूछते हैं वो सारे के सारे टाइप्स में आपको यहाँ पे दे दूंगा वीडियोस में। सो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। इसमें क्या पूछा गया है कि 90 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द 80। 90 जो है वो 80 का कितना परसेंटेज है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है हमें कि बेस फाइंड करना पड़ता है। इसमें क्या फाइंड करना है हमें कि 90 जो है वो 80 के कितने परसेंटेज है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि 80 जो है उसको हमें 100% ले लेना चाहिए, और जो 90 है उसके परसेंटेज हमें फाइंड करना है। कई बार क्या करता है बच्चे कि ये जो 90 है उसको बेस ले लेते हैं और 80 को नीचे रख देते हैं, तो उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए जिसके आगे ऑफ लिखा होता है उसी को हमें बेस बनाना पड़ता है। तो अगर इससे आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो हमने 0 0 उड़ा दिया, फिर क्या आएगा इसमें 4 से 2, 4 से आ जाएगा इसमें 25, 25 × 9 आएगा 225 डिवाइडेड बाई 2 112.5। तो ये आ गया हमारा आंसर 0.5। सो 90 जो है वो 80 का 112.5% है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड भी और थोड़ा फास्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हो इसमें, तो मतलब जो भी आपका बेस होता है ना वो हमेशा ये डिनोमिनेटर में रहता है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा कि जो भी आपको वैल्यू दी होगी कि जिसका परसेंटेज फाइंड करना है आपको, वो न्यूमरेटर में आएगा, और इंटू 100 कर सकते हो आप। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये मेथड भी अच्छी लगे तो इसी को फॉलो करना, क्योंकि इससे ये क्या होता है कि पूरा एक स्टेप हमारा कम हो जाता है।
ओके अगर इसमें ये जो एग्जांपल है इसमें आपको एक और वेरिएंट भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि 90 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 लिखा है, इसकी जगह पे आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई 90 जो है वो 80 से कितने परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये जो है पूरा हमारा एग्जाम्पल चेंज हो गया। इसमें हमने क्या फाइंड किया कि 90 जो है वो 80 का 112.5 परसेंटेज है, बट इसमें क्या आएगा हमारा आंसर कि भाई 90 जो है वो 80 से 12.5 परसेंटेज ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या पूछा गया आपको वो क्लियर करना चाहिए एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम द 60,000 टू द 65,000 इन अ ईयर, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। इसमें क्या पूछा गया है कि भाई एक सिटी थी, उसमें एक साल थी पॉपुलेशन 60,000, इससे हो गई 65,000। तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो भी है वो 5,000 बढ़ गई है। तो अगर आपने वो जो मैंने अभी पिछले सब में ही करवाई थी मेथड, अगर वो हम इसको यूज़ करें इसमें, तो 5,000 अपॉन 60,000 इंटू 100 का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा बेस हो गया, क्योंकि इससे बढ़ रही है, और जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो इसमें आ गया 5,000, तो इससे हमें पता है सीधा 12 आ जाएगा। 12 तो यहाँ पे 4 से 3 एंड 25, सो 25 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे तो क्या आएगा 3813, और ये क्या आ गया हमारा परसेंटेज। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप वो सिंपल तो कर ही सकते हो। 60,000 थी तो 5,000 बढ़ी, तो 100 से कितना बढ़ा हमारा। ये सिंपल मेथड तो है ही, बट ट्राई करो आप लोग कि ये आपको समझ आ जाए। सो क्या है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। In an examination, the passing marks is the 40%. If the candidate gets the 65 marks and fails by the 3 marks, then find the maximum marks. इसमें क्या दिया गया है कि एक एग्जामिनेशन है, उसके मैक्सिमम मार्क्स हमें फाइंड करना है, मतलब कि टोटल मार्क्स जो है वो हमें फाइंड करना है। सपोज हमें दिया नहीं है तो हमने ये कर लिया, गैस कर लिया कि शायद वो एक्स है। फिर क्या दिया है हमें, पासिंग मार्क्स दिया है, तो पासिंग मार्क्स को हम पी लिख सकते हैं। सो द पासिंग मार्क्स इज़ द 40% ऑफ एक्स। सो 40% हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। फिर और क्या कंडीशन दी है, इफ़ अ कैंडिडेट गेट्स द 65 मार्क्स एंड फेल्स बाय द 3 मार्क्स। सो उसको 65 मार्क्स मिलता है, बट वो पासिंग मार्क्स से 3 मार्क्स कम पाता है, तो उसका पी क्या हो जाएगा 68, हमें पता चल गया। चलो अभी ये पी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 68 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। सो यहाँ पे 0 गया, यहाँ पे 0 गया, 17 इंटू 4, सो हमारा आंसर आ जाएगा 170। सो अगर इस टाइप के एग्जाम्पल हो तो उसको हम डिवाइड करके भी इस तरह से आंसर ला सकते हैं। चलो अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ द एप्पल इज डिक्रीज्ड बाय द 20%, देन अ मैन एनेबल टू परचेज द 16 एप्पल्स मोर फॉर द 320 रुपीज़, देन फाइंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द 10 एप्पल्स। ये टाइप के एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रॉफिट और परसेंटेज में से। ऐसा क्यों होता है कि इसमें क्या दिया गया है कि इफ़ अ प्राइस ऑफ द एप्पल इज डिक्रीज्ड बाय द 20%, सो सपोज वो 320 रुपीज़ में पहले एक्स एप्पल्स बाय कर सकता था। फिर क्या हुआ कि इसमें 20% का डिक्रीमेंट आ गया। सो 32 का 320 का अगर आप 20% निकालोगे तो आ जाएगा हमारा 64। तो अभी हम क्या करेंगे कि भाई 320 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या आएगा, 60 जाएगा तो 260 एंड उसमें से 4 जाएगा तो 256। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी क्या हुआ ये जो 20% डिक्रीज़ हुआ उसकी वजह से ये जो 200 पहले जो 320 रुपीज़ में एक्स एप्पल्स मिलते थे उसकी वजह 256 में ही एक्स एप्पल्स मिलने लग गए हैं। तो अभी क्या होगा कि 320 में क्या मिल रहा है हमें, एक्स प्लस 16 एप्पल्स मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो हमारा ये जो 16 एप्पल्स हमें ज़्यादा मिल रहा है वो किस प्राइस पे मिल रहा है, हमें 64 की वजह से हमें 16 एप्पल्स ज़्यादा मिल रहे हैं। सो मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है कि सीधा ही जो 16 एप्पल्स है उनकी जो प्राइस होगी वो 64 होगी। सो 1 एप्पल की प्राइस क्या हो सकती है 4। तो हमें क्या पूछा गया है, देन फाइंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द 10 एप्पल्स। रिड्यूस्ड रेट ही पूछा है हमें, तो 10 की हो जाएगी 40। ठीक है, अगर आपको ये मतलब एग्ज़ाम में अगर आपको इस टाइप का सम पूछा जाए तो क्या करने का कि सीधा ये 320 का 20% निकाल दो, या अगर 20% ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी हमारा यही रहेगा।
ठीक है, जो भी वो 20% हमें निकालना है, और जो 20% होगा उसकी वजह से ये 16 एप्पल्स ज़्यादा मिलेंगे, या अगर बढ़ जाएगी तो 16 एप्पल्स कम मिलेंगे। तो ये जो 16 एप्पल्स की जो प्राइस आएगी वो इसका 20% या जो भी हमें एग्जाम्पल में दिया हो वही आएगा। सो सीधा यही स्टेप पे आपको जाने का, ताकि ये तो सिर्फ समझने के लिए था, अगर एक बार ये दिमाग में उतर जाए फिर आप एग्ज़ाम में सीधा यही कर सकते हो। सो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सो आप ये भी कर सकते हो। फिर क्या दिया गया है कि अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, सपोज इसकी सैलरी है 100, सो वो जो स्पेंड करता है वो अमाउंट है 60 रुपीज़। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय द 30% एंड केयरफुली नहीं आएगा, इसमें स्पेंडिंग आएगा, and spending is increased by the 20%, then find the percentage change in the saving। इसमें क्या हुआ है, जो उसकी सैलरी थी वो 30% बढ़ गई, तो 100 का क्या आएगा 30, तो 130। देन जो उसकी स्पेंडिंग थी वो भी 20% बढ़ गई है, तो अगर हम 60 का 20% निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 12, मतलब क्या आ जाएगा 72। 60 में 12 ऐड करेंगे तो 72। फिर क्या बताया गया है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स। अभी सेविंग्स क्या है वो तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि भाई जो भी इनकम है उसमें से जो वो स्पेंड करता है मनी, उसमें से जो बच जाएगा इसमें से ये, तो उसकी सेविंग्स हो जाएगी। सो पहले क्या थी 40, फिर क्या हो जाएगी 30 एंड 20 50, 50 + 8 तो 58 हो जाएगी हमारी सेविंग्स। तो उसने क्या पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स। अगर सेविंग्स का रुपीज़ पूछा होता उसने तो वो तो हमारा 58 आ गया है, बट हमें क्या पूछा गया है कि भाई परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। सो परसेंटेज चेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा कि भाई 40 रुपीज़ से 18 रुपीज़ बढ़ा है, तो 100 में से कितना है, या फिर 18 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। सो 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, 2 4 2 एंड 2 4 5 एंड 2 4 9। सो ये जो 45% आ गया वो हमारा आंसर है। ठीक है, ये सबसे ध्यान में रखने जैसी बात है कि क्या पूछा गया है आपको, सेविंग्स का परसेंटेज चेंज पूछा गया। A earns 40% more than B and B earns 20% less than C, then how much percentage more A earns than the C। इसमें क्या दिया गया है कि भाई एक A है, B है और C है, तो जो भी लास्ट आपको दिया गया होगा उसकी वैल्यू इस टाइप के एग्जांपल में हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, बी और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप दिया गया है, देन बी अर्न्स 20% लेस देन सी। सो सी का 20% तो 20 हो जाएगा, तो बी का आ जाएगा 80। फिर क्या दिया गया है हमें, ए अर्न्स 40% मोर देन बी। सो ए अर्न्स 40% मोर देन बी, सो 100 की वैल्यू अगर 80 है, सो जो भी 140 की वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू आएगी। सो इसमें क्या आ जाएगा, इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। सो 14 8 112। ठीक है, या फिर आप सीधा ये मतलब लंबा पड़ जाए तो आप यहाँ पे 40 फाइंड करके उसको ऐड भी कर सकते हो 80 में, तो वो भी इजी रहेगा इसमें। सो 40 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, ये 80 है, 32, 80 में 32 ऐड कर दोगे तो भी 112 आ जाएगा। सो अभी क्या पूछा गया है, देन हाउ मच परसेंटेज मोर ए अर्न्स देन द सी। अच्छा, सी से तो ये 12, सी का तो हमने 100 लिया है, सो 100 से 12 ज़्यादा है, तो मतलब 12% ही आ जाएगा हमारा आंसर। सो आंसर ही आ जाएगा हमारा 12%, क्योंकि 100 है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, 100 पे 12 तो 100 पे कितना, सीधा हमारा आंसर ही आ जाएगा 12%। देन आगे क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 65 वोट्स वर इनवैलिड and the one candidate gets 52% votes and won by the 98 votes, then find the total number of the votes। ओके, सो इसमें क्या दिया गया है कि भाई इलेक्शन होता है, तो इस टाइप के एग्जांपल को हम डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इलेक्शन होता है उसमें सबसे पहले दो टाइप के वोट्स होते हैं, एक तो इनवैलिड होता है और दूसरा होता है वैलिड वोट्स। तो जो भी पर्सन अगर जीतता या हारता है तो मतलब उसकी जो विन होती है
या वो लूज़ करता है, तो वो जो भी होगा वो वैलिड वॉट्स से ही काउंट हो पाता है, ठीक है। और जो इनवैलिड है वो तो यहाँ पर ही रहेगा। अगर उसको टोटल वॉट्स काउंट करने हैं तो वैलिड वॉट्स काउंट करके उसमें ऐड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, इनवैलिड वॉट्स हमें कितने दिए गए हैं कि भाई 65 वॉट्स आर इनवैलिड, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या दिया गया कि भाई इफ़ द वन कैंडिडेट गेट्स द 52% वॉट्स एंड वन बाय द 98 वॉट्स। अगर विनर कैंडिडेट को 52% वॉट्स मिल रहे हैं तो लूज़र कैंडिडेट को कितने वॉट्स मिल गए होंगे, 48 मिलेंगे, क्योंकि टोटल तो 100 ही होगा, वैलिड का भी 100% ही होगा ना। तो 100 में से अगर इसको ये 52 वॉट मिल रहा है तो इसको 48 वॉट मिल रहा है, मतलब 52% है यहाँ पे, और ये जो है वो 48% है। फिर हमें क्या कंडीशन दी गई है कि इफ़ द विनर वन बाय द 98 वॉट्स, जो भी विनर है वो लूज़र से 98 वॉट्स ज़्यादा पाता है, ठीक है। सो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि भाई जो विनर और लूज़र के बीच में अगर परसेंटेज के हिसाब से हम डिफरेंस देखने जाए तो वो है 4%, और अगर वॉट्स के हिसाब से देखा जाए तो वो डिफरेंस है 98 वॉट्स और 4%। तो हमें पता चल गया कि भाई जो 4% है हमारा, उसी की वैल्यू है 98 वॉट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो 4 है उसी की वैल्यू 98 है। सो 100 की वैल्यू कितनी होगी, सो 100 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 50, बट उसकी जगह अगर हम यहाँ पे कर दे तो वो इजी रहेगा, 24.5 अगर हम कर दें और यहाँ पे 100 ही रहने दें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 100 को डिवाइड करने से कोई फ़ायदा है नहीं। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2450। अभी हमें क्या करना है कि भाई टोटल वॉट्स अगर फाइंड करना है, ये तो क्या हो गया हमारा वैलिड वॉट्स हो गया, और जो इनवैलिड वॉट्स है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमें टोटल वॉट्स भी मिल सकते हैं। अगर टोटल वॉट्स कास्टेड ही पूछा है तो वैलिड वॉट ही आ जाएगा, बट अगर टोटल वॉट्स भी पूछा होता तो इसमें हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। सो 11, 5 एंड 2, 5, 1, 5, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे इस टाइप के एग्जाम्पल में, आगे और भी आएंगे इसके एडवांस लेवल के भी, कि मतलब जो भी विनर या लूज़र के वॉट्स होंगे वो टोटल वॉट्स में से उसका परसेंटेज दिया होगा, तो वो भी कैसे सॉल्व करते हैं उसका अप्रोच भी हम सीखेंगे। बट अभी ये थोड़ा हमारा बेसिक हम सीख रहे हैं, तो ये टाइप के एग्जाम्पल भी सबसे पहले करने चाहिए, ताकि क्या आपका धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो तो आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। In an election between the two candidates, 10% of the voters doesn't cast their votes and 85 votes were declared invalid. If the one candidate gets the 50% votes of the voters list and won by the 165 votes, then find the total number of the voters in the voter list. Okay, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ये देखो क्या दिया गया है कि भाई 50% वॉट्स ऑफ द वॉटर्स लिस्ट, मतलब टोटल वॉट्स में इसमें दिया गया है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, इससे अलग ही है ये पूरा। तो इसका भी चलो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज टोटल वॉट्स जो है वो 100% है, उसमें से हम सारा का सारा डिवाइड करके देखते हैं क्या हमें कुछ मिलता है या, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो 10% वोटर्स डजन कास्ट देयर वोट्स। सो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, 10% डजन कास्ट लिख देते हैं, चलो लिख दिया हमने। एंड 85 वोट्स वेरी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। सो इनवैलिड में हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनवैलिड में 85 वोट्स है। फिर क्या दिया गया है, इफ़ द वन कैंडिडेट गेट द 50% वोट्स ऑफ द वोटर्स लिस्ट एंड वन बाय द 165 वोट्स। तो सो जो भी एक जो विनर कैंडिडेट है उसको ये जो 100% है उसका 50% वोट्स मिलता है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 50%, ठीक है। और क्या दिया गया है, एंड वन बाय द 165 वोट्स। तो जो भी विनर कैंडिडेट है वो लूज़र कैंडिडेट से 165 वोट्स ज़्यादा उसको मिलता है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट। अभी चलो इसमें हमें क्या पता चलता है कि भाई जो 50% वोट्स है वो विनर कैंडिडेट को मिलते हैं, 10% वोटर्स जो है वो उनका वोट ही कास्ट नहीं करते, तो मतलब 60% का तो हमारा क्लियर है। बट जो भी 40% है हमारा, 40% है वो हमारा दो जनों के बीच में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो सबसे पहले इनवैलिड वोट आएगा, वो भी ये 40% में ही आना चाहिए, और एक तो जो है वो लूज़र कैंडिडेट है उसका भी ये 40% में ही आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इसका हमें पता है कि भाई 50 इसका है, 10 इसका है, तो जो भी 40 है उसमें ये इनवैलिड भी आ जाएगा और उसमें भी है लूज़र के वॉट्स भी उसमें ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि भाई जो इनवैलिड है उसकी वैल्यू हमें दी है, फिर ये लूज़र की हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लूज़र का क्या है कि भाई जो विनर कैंडिडेट है उससे 165 वॉट्स इसको कम मिलते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हम लिख सकते हैं कि भाई जो 85 है प्लस लूज़र कैंडिडेट है उसके वॉट्स जो है वो 40% है, और जो 50% वॉट्स है वो लूज़र कैंडिडेट प्लस 165 है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो भी हमारा क्या आ जाएगा कि भाई जो 10% है, ये देखो परसेंटेज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 50% है हमारा उसकी वैल्यू है L + 65, और जो हमारा 40% है 165 है यहाँ पे, और जो हमारा जो 40% है उसकी वैल्यू है हमारी 85 + L, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, आपका थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि दोनों में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या मिल जाएगा कि भाई जो 10% है उसकी वैल्यू यहाँ से L और L चला जाएगा, और 165 में से 85 जाएंगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 80 ही आ जाएगा अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा 100% हमें क्या मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा। सो क्या हमें पूछा गया है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वाटर्स इन द वाटर लिस्ट। तो ये तो सीधा हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा इसमें किया ही नहीं है कैलकुलेशन में। अगर आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, इसको अगर ऐसे डायग्राम में आप बनाने का ट्राई करोगे तो ये टाइप के एग्जाम्पल ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई जो 10% वाटर्स थे उन्होंने वॉट ही कास्ट नहीं किया, तो हमने इसको अलग लिख दिया। फिर क्या हुआ कि भाई जो विनर कैंडिडेट है उसको 50% वॉट्स मिलते हैं, तो हमने लिख दिया कि भाई 100 का 50% ही होगा। फिर एक जो इनवैलिड वॉट्स होते हैं उसका 85 है, और जो लूज़र है उसका तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई ये 10% यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है, जो भी 40% होगा उसमें इनवैलिड वॉट्स होंगे और लूज़र के वॉट्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 85 लिख दिया, और जो लूज़र के वॉट्स थे वो हमने L लिख दिए। फिर हमें एक ये इक्वेशन दिया हुआ था कि भाई जो विनर के वॉट है वो लूज़र के वॉट से 165 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने फिर ये लिख दिया कि भाई जो 50% है वो विनर के वॉट है, तो उसको हम L + 165 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई L + 165, और जो 40% की वैल्यू थी 85 + L वो हमने यहाँ पे लिख दी। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दिया कि भाई 50 में से 40 गए तो 10%, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा वैल्यू आ गया 80। सो ये 10% की वैल्यू हो गई, क्योंकि 50% में से हमने 40% को सब्ट्रैक्ट किया। सो हमारे 100% की वैल्यू जो थी वो हमें 800 मिल गई है। ठीक है, सो आज का हमारा यहाँ तक ये सेशन। आई होप कि सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो सी यू एवरीवन, थैंक यू।